Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. It's Sunday Solution episode 15 जो कि बहुत टाइम से नहीं आ रहे थे. क्यों नहीं आ रहे थे? छोड़ो ना, क्या करोगे जान के. पर अभी आएंगे बिकॉज एंड इस बार ना मैं बहुत केयरफुली ईमेल्स पिक करूँगी. मतलब बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं सोचूंगी. जो भी मुझे ठीक लगेगा ना मैं वही ईमेल ऐड करूँगी, चाहे उसमें जितना भी रेयर इशू हो. तो आई होप इस बार के एपिसोड्स अच्छे बने. और वैसे ही होगा पहले जैसे. आपकी सुविधा के लिए टाइम स्टैम्प नीचे दिया जाएगा ताकि जो भी आपको पूरा वीडियो इतना लंबा नहीं देखना पड़े. जो भी सेक्शन आपको देखना है आप उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करोगे तो देख लोगे, या पूरा देखना है तो पूरा देख लो वीडियो. So if you would like to be part of my YT fam, you can follow these steps. Click here to subscribe and press the bell icon, then you will never miss my new update. तो पहला मेल है, कन्विंस माई सिस्टर फॉर मैरिज. हाई मयूरी जी, आई हैड वॉच्ड मेनी ऑफ योर वीडियोज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड रियली बिग फैन ऑफ योर्स. थैंक यू. I think you can suggest me right thing on the ongoing situation in my house. My sister is 25 years of age and she is in love since school time with a guy very deeply, but me and my parents are not agreeing to marry her with him because of two main reasons. One, we belong to different caste and we even talk to their family, but the parents of that guy had insulted our parents. Second, I am an officer in Indian Army and my family is very reputed and respected, but this guy, he does not even have any job currently, and due to progressive failures in his career in India, he has moved to Canada last year in search of job opportunity. Mayuri ji, I think this guy can definitely give my sister love in her life, but after marriage, other than love, there are many important things to sustain that married life. Now this guy not even have guts to walk up to my parents and ask the hand of my sister. I'm not against intercaste marriages, but I'm definitely against such a scenario because I think if he really cares so much about her, then at least show some guts, be a man to take responsibility of her, which he failed to do so. But I don't know how to convince my sister. She is so madly in love with him that she's telling us that please send me to Canada so that she will marry him. Mayuri ji, I want your true opinion on this and how to get my sister back on track. We are getting very good matches for her, but just because of this love scenario of her, we are not able to respond to other marriage proposals. I had even tried to contact him, but he is not even ready to talk to me on this matter. Mayuri ji, me and my family really very much worried about her, and as such I'm aware of it's difficult to spend life in Canada even if you are earning good. But in this scenario, there is nothing of that sort. So you please tell how I can let my sister marry such a guy by knowing that I'm not doing justice with my sister's future, and due to so deeply involved in love, my sister is not able to see things practically in her life. Please consider this a story of my family and give your opinion on that. She is very big fan of yours and she will definitely listen to your advice. Thank you very much. थैंक यू. आपकी फ़िक्र बहुत जायज़ है, बिल्कुल मत भेजिए कनाडा. पर कुछ बातें आपको समझने की ज़रूरत है और कुछ बातें अपनी बहन को समझाने की ज़रूरत है. बचपन से साथ है ये दोनों, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी 1-2 महीने पहले ही आपको पता चला है. थोड़े लंबे टाइम से आप जानते होंगे इनके रिश्ते के बारे में और इसीलिए आप इतनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हो इनके प्यार को. पर आप उस बंदे को थोड़ा गलत समझ रहे हो. मतलब आपने लिखा है ना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बी अ मैन, ऐसे. तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको नहीं लेनी होती ना तो वो जॉब ढूंढने के लिए कनाडा नहीं शिफ्ट होता. और ये आपका भी सही है, आप नहीं चाहते कि वो लोग वहाँ पे सेटल हो. तो ये बात आप अपनी सिस्टर को और उस बंदे के पेरेंट्स को समझाइए कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ भी है इंडिया में और काम करने वाले इंसान के लिए ज़रूरत मायने रखती है, जगह नहीं. और वो बंदा अभी आपसे नहीं बात करना चाह रहा है. शायद उसको लग रहा होगा कि आप क्या ही कहोगे, यही कहोगे कि मेरी बहन से दूर रहे, तो इसलिए नहीं कर रहा होगा बात. मेरे हिसाब से आपको 2 साल का वक्त देना चाहिए इन दोनों को, और इन 2 सालों में ये एकदम कम से कम कम्युनिकेट करें, क्योंकि आप जानते तो हैं ये एक दूसरे को, दे आर श्योर अबाउट ईच अदर. तो एकदम कम बात करें और ये जो एज है अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ध्यान दें. और इन दोनों को ये भी पता चलेगा कि क्या इतना अकेला रहकर भी दोनों की लॉयल्टी बरकरार रहती है एक दूसरे के लिए, एंड फोकस्ड रह पाएंगे अपने अपने काम पे, वो अलग. एंड अरेंज मैरिज रिश्तों का तो ऐसा है कि जब तक आपकी बहन की शादी नहीं होती ना,
रिश्ते आते ही रहेंगे आपके घर, डोंट वरी। और 27 कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं होती है कि अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, अच्छे रिश्ते ही आएंगे। और अगर इन 2 सालों में ये महाशय कुछ नहीं कर पाए तो उन्हीं अच्छे रिश्तों में से एक को हाँ कहेंगी वो, और उस टाइम बहुत हैप्पीली हाँ कहेंगी, क्योंकि 2 साल में उसको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी तब तक, और उस पर्सन से भी वो थोड़ी डिटैच हो चुकी होगी। तो एटलीस्ट उसके अभी आप फोर्स करोगे ना अरेंज मैरिज के लिए तो आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक तो आप बहुत अच्छे भाई हो, आपको इतनी फ़िक्र है इसलिए आपने ईमेल किया है, और तो अभी आप फोर्स भी नहीं कर पाओगे। और 2 साल रुक जाओ, आप उसके भी दिमाग में हमेशा के लिए ये चीज़ रहेगी कि एटलीस्ट मेरे भैया ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को समझा एंड मेरा अच्छा ही चाहा, अभी बॉयफ्रेंड ही नहीं कर पाया तो क्या करेंगे। एंड अगर वो कर लिया सिचुएशन को आप लोगों के अकॉर्डिंग तब तो मस्त है फिर, और क्या चाहिए, है ना। तो या वैसे आप अरेंज मैरिज भी कराएंगे ना सिस्टर, आप सुन रहे हो तो आपके भैया आपकी अरेंज मैरिज भी कराएंगे तो आपकी पसंद से ही कराएंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सेकंड ईमेल है, इसका टाइटल है बॉयफ्रेंड पेरेंट्स स्पेशली मदर ऑफ बॉयफ्रेंड इज़ नॉट अलाउ फॉर इंटरकास्ट लव मैरिज। ओके, तो ये लिखी है इन्होंने, जैसा लिखा है मैं, बट मेरे को पढ़ना पड़ेगा, बट नॉट नेसेसरी कि आप इंग्लिश में ही लिखो, अगर आपको दिक्कत हो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो ईमेल, ठीक है। इन्होंने लिखा है, हाई मयूरी, आई एम शीतल फ्रॉम पुणे, आई एंड माई बॉयफ्रेंड वी वर इन रिलेशनशिप फ्रॉम लास्ट 10 years, नाउ वी आर सेटल्ड एंड टॉक विथ हिज फैमिली अबाउट अवर मैरिज, बट हिज मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड वी आर ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 1 year, नाउ फ्रॉम लास्ट 2 months his mother aggressively talked with him about my character, my looks, etc. and told him if he will marry me she will do suicide. Because of his mother behavior he is upset now and told me we cannot marry and family is also important, so he don't want to convince his mother now, but we love each other and cannot live without each other. Please help me how to convince my boyfriend to keep trying and convince his mother. He is belonging with Rajput family, he belongs to Rajput family. His mother thinks that if he marry with me then his relative will break up all relation and boycott from their society. Please help me how to convince my boyfriend and how to convince him. How to convince my boyfriend, how to convince him. Nice. शीतल, इट्स रियली सैड। आई मीन यहाँ पे 1-1 साल के रिश्ते टूटते हैं तब इतनी तकलीफ़ होती है, तो आपका तो फिर भी 10 साल का रिश्ता है, एंड जिनमें से 1 साल तो उसने अपनी मम्मी को मनाया है, एंड नाउ ही सेइंग कि फैमिली भी तो इम्पॉर्टेंट है, तो अब मैं नहीं मना सकता और ज़्यादा। एक बात पूछना उससे, क्या इन 10 सालों में भी मैं आपकी फ़ैमिली नहीं बन पाई? आपको ऑलरेडी इसका आंसर मिल चुका है, मुझे पता है। मैंने एक बात सुनी है राजपूतों के बारे में, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, बट मैंने सुना है कि जो राजपूत होते हैं वो इस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं कि हमारी फैमिली में राजपूत बहू आएगी मतलब राजपूत बहू ही आएगी। मतलब वो ना रिश्ता तय करने के बाद भी पूरा छानबीन करते हैं, 3 जनरेशन तक से रिकॉर्ड निकालते हैं। रिकॉर्ड मतलब कि इनके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने तो कहीं यहाँ वहाँ शादी नहीं की थी, ऐसा। मतलब इट्स अनदर लेवल कुंडली मैचिंग थिंग, कि अगर कुंडली भी मैच हो गई और ऐसा कुछ उनको पता चला तो भी वो रिश्ता के लिए मना कर देते हैं। तो मेरी इतना ओवर एक्टिंग करने का मतलब यही था कि मैं नॉन राजपूत होके इतना जान सकती हूँ, तो क्या उस बंदे को नहीं पता होगा अपने घर के माहौल के बारे में? मतलब हम सब जानते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमारे पेरेंट्स किस पर्सन के लिए राज़ी होंगे, किस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे या नहीं, थोड़ा आइडिया तो रहता है। और इतने के बाद भी मतलब डू यू रियली वॉन्ट टू मैरी दिस इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसको अब जाके रियलाइज़ हो रहा है, जब उसकी मम्मी मरने की धमकी दे रही है तब उसको पता याद आ रहा है कि मुझे ब्रेकअप करना है 10 साल बाद। मतलब यार मत करो इससे शादी। आपकी फैमिली ना बहुत अच्छे जगह पे आपकी शादी करा देंगी, पर आप इनसे मत करो, करने दो इस व्यक्ति को अपनी मम्मी की मर्ज़ी से शादी। बिकॉज़ कोई भी समझदार इंसान अपनी लव लाइफ को लेकर ऐसा डिसीजन नहीं लेता है जैसा इसने लिया है। ओके, तो ये तीसरा ईमेल है, इन्होंने, इसका टाइटल है नीड सजेशंस। हाँ मैम, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ। 14 फ़ेब को मैंने अपने एक पुरानी क्लासमेट से चैट किया, देन शी सेज़ कि आप किसी से प्यार करते हो तो इजहार भी करना चाहिए। आफ्टर दैट आई प्रपोज दैट गर्ल।
और वो एक्सेप्ट भी की। हम 1 वीक बात किया, उसके बाद वो अपने घर चली गई और घर से आने के बाद बोलती है कि विवेक, मैं आपके इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, अभी भी ब्रेकअप के बाद भी उसे भूल नहीं पाई हूँ, सॉरी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो बोली हम सिर्फ फ्रेंड रह सकते हैं। मैंने बोला ओके। 6 अप्रैल को मेरी एक बेस्ट फ्रेंड से उसकी बात हुई FB पे। वो लड़की उसे बोलती है कि विवेक को क्यों मेंटली टॉर्चर करती हो, और फिर किसी बात पे लड़ाई हो गई, गाली गलौच भी हो गई। गाली गलौच नहीं होता, गाली गलौच होता है। उसके बाद वो मुझे मैसेज की कि विवेक ये सब तुम करवाए, मुझे गाली दिलवाए, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी। मैंने बोला यार इसमें मैंने क्या किया, बट वो सुनने को ही रेडी नहीं है। बोलती है कि अब तेरे को कभी बात नहीं करनी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया बट अब बात ही नहीं करनी। मैंने सॉरी भी बोला बट बोल रही है कि नहीं मैं तुमको नहीं जानती, मुझे बात नहीं करनी। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने बहुत कोशिश करी बट वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। और एक वो बंदर था जो 2 बिल्लियों की लड़ाई में रोटी छीन के ले गया था, और एक आप हो। खैर इतना स्ट्रेस मत लो, आपकी बेस्ट फ्रेंड तो आपके साथ है ना, बस आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेस्ट फ्रेंड लड़ी यार आपके लिए, और गालियाँ भी दी उसने उसको। और रही बात उस लड़की की, तो उसने तो वैसे भी मतलब कौन सा ब्याह कर लेना था तुमसे, एक्सेप्ट करके रिजेक्ट ही तो कर दी थी। और आपने कोशिश तो की ना सब कुछ क्लियर करने की, नहीं समझना चाह रही है तो जाने दो ना। वैसे भी एक्सेप्ट करके रिजेक्ट करना यार ये क्या होता है यार, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा तो ATM मशीन भी नहीं करता हम इंसानों के साथ कि कार्ड एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया और पैसे भी नहीं दे रहा है। बट खैर कोई चिल करो, सब ठीक हो जाएगा। फाइनल चौथा है ये ईमेल। Relationship issue. Ma'am, I am a dentist. I have seen your videos. Those are really inspiring. I have issue. I and my BF, we both were very good friends. Later, it turned into long distance relationship. We were really happy and everything was fine. And then he joined engineering college and me medical. After that, he started giving reasons like I'm busy, I have work, don't irritate me. And then he stopped talking also. Now, even if I call him, he just ignore. He sends me snaps. That's it. I have directly asked him whether he is interested or not, but even for that he doesn't reply. Ma'am, what does it mean? Do he still loves me or not? Ma'am, please help me out. Should I wait for him or should I move on? आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया, यू शुड मूव ऑन। वेट किसके लिए करोगी? वो लविंग पर्सन तो चेंज हो चुका ना अब। मतलब मेडिकल की पढ़ाई तुम कर रही हो और बिजी वो चल रहा है। वाह यार, सी यू आर रियली स्मार्ट गर्ल। तो खुद को ऐसे हर्ट मत करो। जब आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, तो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। जो पर्सन आपको सही से ट्रीट करता है ना, बस वही आपका पार्टनर बनने की काबिलियत रखता है, बाकी और कोई नहीं। आपने वो बात तो सुनी होगी कि ये लड़के जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, ये वही लड़के हैं जिनकी परवरिश एक क्वीन ने की होती है। तो बस मिल गया आपको आंसर। आई डोंट नो आपने पूरा वीडियो देखा या टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर करके जो सेक्शन आपको देखने थे वही देखा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद इतना लंबा वीडियो बनाने में और ईमेल्स पिक करने में। तो आई होप मैं ऐसे एपिसोड्स लाऊं हर संडे को और आप लोग से बातें करूं, आप लोग के इश्यूज़ को जानूं। और अगर आप लोग के लिए इन ईमेल्स के लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट में लिखो, क्योंकि कमेंट भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो क्या पता किसका सजेशन अच्छा लगे, मेरा या आपका, है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि बहुत लोग को ज़रूरत होती है यार सजेशंस की। बस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।